اب آپ کو بتائیں صادق آباد میں مہنگائی کے کاروبار ٹرک آرٹ جیسا قدیمی فن بھی متاثر۔ اس فن سے جڑے افراد مالی مشکلات کا شکار۔ خوبصورت آرٹ بھی خاتمے کی جانب روا دواں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ملک جاوید انور کی رپورٹ میں۔ مہنگائی سے ہر شعبہ زندگی متاثر۔ ٹرک آرٹ جیسا قدیمی فن بھی تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا۔ ٹرکوں کو خوبصورت رنگوں سے مزین کروانا اب مالکان کی دسترس سے باہر ہو گیا، جس کی وجہ سے اس آرٹ سے وابستہ افراد مالی مشکلات کا شکار ہو گئے۔ ٹرک آرٹسٹ کا کہنا ہے کہ پہلے ڈرائیور نقش و نگار بنوانے کے لیے آتے تھے، مگر اب کاروبار ختم ہو گیا ہے۔ کاروبار سر بالکل کم ہو گیا ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے گاڑیاں آ بھی نہیں رہی، مارکیٹیں بالکل خالی ہو پڑی ہیں اور مہنگائی کی وجہ سے لوگ کام نہیں کروا رہے۔ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ لوگ کام ہی نہیں کروا رہے ہیں، مارکیٹ بالکل بند ہو گئی ہے، مہنگائی بہت ہے۔ ٹرک آرٹسٹ کا مزید کہنا تھا کہ ملک کے دور دراز کے علاقوں سے گاڑیاں آتی تھیں، اب مہنگائی کے باعث ٹرک آنا بند ہو گئے ہیں۔ ٹرک آرٹ اور سجاوٹ کے لیے پہلے 2,50,000 روپے درکار ہوتے تھے، اب 4 لاکھ خرچ ہوتا ہے۔ ٹرک مالکان یہ خرچ برداشت نہیں کر سکتے۔ مہنگائی نے ہمارے کاروبار بہت اثر کیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں کافی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ دن بدن رنگ بڑھ رہے ہیں، کاروبار نہیں ہے۔ ڈرائیور حضرات آتے تھے اور گاڑیوں کو سجاوٹ کرتے تھے، اچھی اچھی تصویریں بنواتے تھے، اچھا اچھا رنگ کرواتے تھے، اب وہ نہیں رہا۔ ٹرک آرٹ ہماری ثقافت کو اجاگر کرنے کا اہم ذریعہ ہے جو دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان ہے، لیکن مہنگائی کے باعث یہ فن تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک جاوید انور، روہی، صادق آباد۔ اب آپ کو بتائیں موسم گرما کی تعطیلات کا اعلان کر دیا گیا۔ چھٹیوں میں سرکاری اسکولوں کی بلڈنگ اور دیگر سامان کا خیال رکھا جائے۔ پنجاب بھر کے سی اوز اور ڈی اوز کو ہدایت کا مراسلہ جاری۔ اسکول ہیڈز کو سولر پینل سسٹم کی حفاظت کا ٹاسک بھی سونپ دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں رحیم یار خان سے ہمارے نمائندے عامر بھٹی سے۔ بالکل رحیم یار خان میں ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے سی او ایجوکیشن اور اس کے ساتھ ساتھ تینوں جو ڈی اوز ہیں ان کو ایک ہدایات کا مراسلہ جاری کر دیا، جس کے مطابق موسم گرما کی چھٹیاں سٹارٹ ہونے جا رہی اور اس دوران اسکولوں کی حفاظت کرنا، ان کے سامان کی حفاظت کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ صفائی کا خاص خیال رکھنا، یہ ریسپانسبلٹی ہے اسکول ہیڈز کی۔ اور اس حوالے سے سی اوز اور ڈی اوز کو واضح طور پہ انسٹرکشن جاری کی گئی ہے کہ اس حوالے سے اسکول ہیڈز کو ہدایات جاری کی جائیں کہ وہ موسم گرما کی چھٹیوں کے دوران اسکولوں کو اکیلا نہ چھوڑیں، بلکہ اسکولوں میں جہاں پہ سولر پینل سسٹم لگا ہوا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی قیمتی جو ہے اثاثہ ہے اسکولوں کا، اور وہاں پہ جو ہے مختلف اسکولوں میں چوری کی وارداتیں بھی سامنے آ چکی ہیں، تو اس چوری کی واردات موسم گرما میں سامنے نہ آ سکیں، لہٰذا سیکیورٹی کے حوالے سے جو ہے وہ انتظامات کو یقینی بنایا جائے، یا گاہے بگاہے جو ہے سولر پینل سسٹم کو حفاظت کے لیے وہاں پہ وزٹ کیا جائے، یا پھر ان کو محفوظ کمرے میں جو ہے رکھ دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ اس وقت بارشیں بھی ہو رہی ہیں تو اسکولوں میں جو کھڑا پانی ہوتا ہے اس کی صفائی کے حوالے سے اسکول میں تمام تر فرنیچرز اور اس کے حوالے سے تمام جو ایسٹس ہوتے ہیں ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے، تاکہ موسم گرما کی چھٹیوں کے بعد تمام اسکولوں کی جو خوبصورتی ہے وہ بھی برقرار رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو قیمتی ایسٹس ہوتے ہیں، سولر پینل سسٹم ہوتے ہیں، وہ بھی اسی طرح سے موجود رہیں۔ بہت شکریہ عامر بھٹی، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اب آپ کو بتائیں پی ایچ اے ملتان کا تشہیری ٹھیکہ 20 کروڑ سے زائد میں نیلام۔ ٹھیکے میں ہولڈنگ بورڈز، شاپ سائزز اور دیگر کمرشل کی تشہیر شامل ہے۔ پی ایچ اے گزشتہ سال کے نسبت زیادہ بڑا ٹھیکہ کرنے میں کامیاب۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں علی ریاض سے۔ بالکل، پاکستان ہارٹیکلچر اتھارٹی ملتان کی آؤٹ ڈور پبلسٹی یعنی کہ جو اس کی سیلف انکم میں خاصی اہمیت کی حامل ہے، جس میں 400 سے زائد ہوڈنگ بورڈز اور بل بورڈ شامل ہے، اس کا ٹھیکہ جو ہے پہلی بار پی ایچ اے کی تاریخ میں 20 کروڑ روپے کا ہوا، جو کہ پہلی بار یہ جو پہنچے گا، جس سے جو پی ایچ اے کو ریونیو ہے خاصا یہ حاصل ہوگا۔ اس کی بات کی جائے تو یہ ٹھیکہ جو ہے 2023-24 کا مزید تفصیلات جانتے ہیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر پی ایچ اے میں سر، کیا کہنا چاہیں گے اس ٹھیکے کے حوالے سے اور اس کا کیا فائدہ ہوگا آپ لوگوں کو؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آؤٹ ڈور پبلسٹی فیس ہمارا مین سورس آف انکم ہے، اور ہر سال جو ہے جون میں ہم اس کا ٹھیکہ کرتے ہیں، اور اس بار بھی ٹھیکہ جو ہے ہمارا پچھلے سال کی نسبت سب سے زیادہ، بلکہ ہسٹری میں ہمارا سب سے بڑا ٹھیکہ ہوا 20 کروڑ سے زائد، جو کریڈٹ ہے اس کا ہمارے ڈی جی پی ایچ اے اور ہمارے ڈائریکٹر مارکیٹنگ کو جاتا ہے، اور انشاءاللہ ہمارے ریونیو میں اضافہ ہوگا۔ مزید ہم ریونیو کے ریسورسز بھی تلاش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے ہر سال ہمارا ٹھیکہ جو ہے پچھلے سال کے نسبت زیادہ ہو۔ ہر سال جو ہے پچھلے سال اس پر زیادہ ہوگا۔ اس بار جو ہے تاریخی ٹھیکہ جو ہے پی ایچ اے کا ہوا ہے، جو کہ 20 کروڑ روپے کا ہے، 20 کروڑ سے زائد کے آنے والے دنوں میں کہا یہ جا رہا ہے مزید بھی سیلف انکم کے ریسورسز کو بڑھایا جائے گا تاکہ پی ایچ اے جو اپنے اخراجات ہے خود
अली रियाज अपडेट के लिए शुक्रिया। अब आपको बताएं कि हडोड़ पका में दो रोजा फ्री अली हसन मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप का इफ्तिताह साबिक डायरेक्टर अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर डॉक्टर सैयद हसन रजा ने किया। कैंप में जनूबी पंजाब भर से मरीजों की शिरकत। कैंप में 300 से ज्यादा मरीजों को अद्वियात फराहम की गई। मजीद जानते हैं आशिक हुसैन कुरैशी से। जी बिल्कुल, खिदमत इंसानियत के जज्बे को वसी करने के लिए अली हसन मेडिकल कैंप जो एक रोज़ा लगाया जाता था, लेकिन आज से उसको जो है वो 2 रोज़ा कर दिया गया है। दी विजडम कॉलेज में इस कैंप का जो है वो इनकाद किया गया है, जिसमें डॉक्टर सैयद हसन रजा जो इस कैंप के इंचार्ज हैं, वो अपनी मेडिकल टीम के हमरा यहाँ पर मरीज़ों का मुफ्त मुआयना करके मुफ्त अद्वियात जो है वो फराहम कर रहे हैं। मज़ीद हम बात करेंगे मसीह है जनूबी पंजाब डॉक्टर सैयद हसन रजा से। जी डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे, खिदमत इंसानियत के जज्बे को मज़ीद वसी कर दिया गया है, तो क्या शहरियों को मैसेज देना? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आशिक भी खुशबख्ती है मेरी और मेरी टीम की कि अल्लाह ने जो हमारी ड्यूटी लगाई उसे हम आसान तरीके से जो है उसको सर अंजाम दे रहे हैं। तो मुझे यकीन है अल्लाह हमारी मदद करेगा और नुसरत करेगा। और जिस तरह आपने फरमाया, ये पहले 1 रोज़ा कैंप था, अब हमने इसको 2 रोज़ा कर दिए। हर महीने का पहला हफ्ता जो है इंशाअल्लाह विजडम स्कूल का रोड पक्का में हुआ करेगा और एतवार को बदस्तूर अली हसन का कैंप होगा। और मेरी तो ये ख्वाहिश है कि ये कैंप 2 रोज़ा ना रहे, अब ये हस्पताल की शक्ल अख्तियार कर ले और ये खिदमत का सिलसिला बगैर तअत्तुल के और बगैर किसी ब्रेक के ये इसको हम जारी करें और मेरे इलाके के सारे लोग जो हैं इससे मुस्तफ़ीज़ हों। और यकीन हमारे साथ समाजी शख्सियत लियाकत अली मुगल भी मौजूद हैं, जो ऐसे कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। उनसे बात करेंगे। जी, आज जो है वो कैंप को वसी कर दिया गया है, दूसरे 2 रोज़ा कर दिया गया है, तो इस पर आवाम को, शहरियों को और मुक़य्यद हज़रात को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ ये हमारे इलाके के लिए एक बहुत बड़ा कदम है कि डॉक्टर साहब ने मस्ती अरब से निकल कर करोड़ पक्का शहर में जो शहरियों के लिए जो है ये इकदाम उठाया है, बड़ा ऐसा इकदाम है। जी, जैसा कि अली हसन मेडिकल कैंप जो अरसा 19 साल से लगाया जा रहा है, उसको अब 2 रोज़ा कर दिया गया है, जिसमें मेडिकल टीम जो है वो मौजूद है। यहाँ पर आने वाले मरीज़ों का मुफ्त मुआयना करके मुफ्त अद्वियात जो है वो। बहुत शुक्रिया आशिक हुसैन कुरैशी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं, खानेवाल अहले हदीस यूथ फोर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन में 9 मुंतखब अहदेदारान की हल्फ बर्दारी की गई। आपको अपडेट करते चलें, खानेवाल अहले हदीस यूथ फोर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन में 9 मुंतखब अहदेदारान की हल्फ बर्दारी की गई है। आपको अपडेट करते चलें, खानेवाल अहले हदीस यूथ फोर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन में 9 मुंतखब अहदेदारान की हल्फ बर्दारी भी की गई। कमालिया खदर खरीदने अब कमालिया नहीं जाना पड़ेगा। मियांवाली में अब कमालिया खदर की तमाम वैरायटी दस्तयाब होगी। मियांवाली में कमालिया खदर की नई दुकान का इफ्तिताह कर दिया गया। मारूफ कारोबारी शख्सियत हसन खान ने बाकायदा इफ्तिताह किया है। मतलब रंगों की कमालिया खदर शहरियों की तवज्जो का मरकज। अब आपको बताएं, शो का कोई मोल नहीं। मियांवाली में एक काश्तकार आर्टिस्ट बन गया। रंग बिरंगे पत्थरों से दीवारों पर कई तस्वीरें बना डाली। परवेज खान नामी आर्टिस्ट 2.5 साल से पत्थरों से तस्वीरें बना रहा है। अख्तर मजाज की रिपोर्ट में। शौक मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसान बना देता है। मियांवाली में भी ऐसा ही हुआ। एक काश्तकार ने रंग बिरंगे पत्थरों से दीवारों पर तस्वीरें बना डाली। देखकर हर आंख हैरान। आर्टिस्ट परवेज खान का कहना था कि रात को सोते वक्त खाना काबा की तस्वीर बनाने के ख्यालात आते थे। बहुत सारे तजुर्बात किए मगर समझ नहीं आ रही थी। आखिरकार पत्थरों का इंतखाब किया। दरियाओं के किनारों, पहाड़ों और गारों से मुख्तलिफ रंगों के पत्थर इकट्ठे किए और खाना काबा की तस्वीर बनाई। ये जितनी भी तस्वीर हैं ये दरियाई पत्थरों से, मुख्तलिफ जगह से हम पत्थर दरियाओं के किनारे से, पहाड़ों से, सुरंगों से इकट्ठे करते हैं। पहली तस्वीर मैंने खाना काबा और रोज़ा रसूल की बनाई। तो अल्लाह की मदद से मैंने इस काम को शुरू किया और इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैं दुनिया की कोई भी तस्वीर जो है उसे बना सकता हूँ। परवेज खान ने बताया कि उन्होंने पहली तस्वीर खाना काबा और रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनाई। अल्लाह के 99 नामों के 588 हरूफ हैं। 588 पत्थरों से खाना काबा की तस्वीर मुकम्मल की। अल्लाह के 99 नामों के 588 अल्फाज हैं, तो मैंने 588 पत्थरों से उस तस्वीर को कंप्लीट। तो ये बहुत मजे का काम है। यकीन करें कि इसमें इंसान थकता नहीं है।
आर्टिस्ट परवेज खान ने बताया कि बनाई गई तस्वीरों को देखकर बहुत अच्छा महसूस होता है। 2.5 साल से बिना उस्ताद के 56 तस्वीर बना चुका हूँ। उन्होंने मजीद बनाया कि तस्वीर की मुनासबत से पत्थरों के रंग का इंतखाब किया जाता है। काले और जेबरा रंग के पत्थर बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। यूरोप के बाद अब पाकिस्तान में भी चकंदर से चीनी तैयार की जाने लगी। चीनी की तैयारी में इस्तेमाल के लिए चौक सरवर शहीद के इलाके सलीमाबाद में बड़े पैमाने पर चकंदर काश्त की जा रही है। चकंदर को जदीद आबाशी निजाम और कुदरती खादों से काश्त किया जा रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं चौधरी अमर। यूरोप के बाद अब पाकिस्तान में भी चकंदर से बड़े पैमाने पर चीनी तैयार की जा रही है। चौक सरवर शहीद के इलाका सलीमाबाद में जदीद आबाशी निजाम से चकंदर की काश्त को मुमकिन बनाया जा रहा है। शुगर बीट से चीनी बनाने का जो अमल है वो पाकिस्तान में चंद साल पहले स्टार्ट हुआ और शुगर से चीनी बनाई जाती है ज़्यादातर यूरोप के अंदर। पाकिस्तान में यहाँ पे अब चंद एक साल पहले ये काम स्टार्ट हुआ है और शुगर बीट से चीनी बनाने के फ़वायद कुछ इस तरह से हैं कि ये सिर्फ एक 6 महीने की फसल है। चकंदर से चीनी यूरोप मुमालिक में बनाई जाती है। पाकिस्तान में चंद साल पहले ये काम शुरू हुआ है। चकंदर की फसल 6 माह में तैयार हो जाती है। किसान को 1 साल इंतजार नहीं करना पड़ता। हमने थल में चकंदर की फसल काश्त करके एक आइडिया दिया ताकि लोग इसे उगाकर अपनी आमदनी में इजाफा कर सकें। किसान को पूरा साल इंतज़ार नहीं करना पड़ता। शुगर केन अगर कोई किसान उगा रहा है तो उसको ऑलमोस्ट 11 से 12 महीने इंतज़ार करना पड़ता है और ज़मीन उसकी खाली नहीं होती। शुगर बीट की फसल से ना सिर्फ किसान शुगर केन जितना ही रेवेन्यू जनरेट कर सकता है बल्कि उसके बाद भी कोई और फसल लगा के इजाफी भी अपने लिए कुछ ना कुछ उस ज़मीन से ले लेता है। जदीद आबाशी निजाम से चकंदर की तैयारी छोटे किसानों के लिए भी फायदेमंद साबित होती है। चकंदर की अच्छी पैदावार मिलने के बाद थल में वसी पैमाने पर काश्त का आगाज किया जा रहा है। शुगर बीट जो है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फसल है और हमारे सहरा में थल में हम इसे काश्त किया है। हमने इसे पहली दफ़ा और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी और कामयाबी से हमने इसे काश्त किया है। इसको हमने प्रॉपर इम्पैक्ट स्प्रिंकलर इरिगेशन के साथ इरिगेट किया है और इम्पैक्ट स्प्रिंकलर इरिगेशन के साथ इरिगेट करने की वजह से हमने पानी की भी तकरीबन 60 से 70% बचत की है। थल में चकंदर की काश्त चीनी बनाने के साथ सहरा को भी आबाद करने में मददगार साबित हो रही है। कैमरा टीम के साथ चौधरी उमर, रोही, चौक सरवर शहीद। आपको बताएं मुल्तान के ब्लू पोट्री और ऊन की खाल के बर्तन पूरी दुनिया में मकबूल है। गैर मुल्की भी ऊन की खाल से बने बर्तनों के दिलदाह निकले नकाशी सबके दिल को भाती है। किला में मौजूद नगार खाने तवज्जो का मरकज। तफसीलात जानते हैं अलिशबा आसिफ से। जी बिल्कुल, मुल्तान की सकाफती चीज़ें दुनिया भर में मशहूर हैं। इस वक्त मैं निगार खाना में मौजूद हूँ। किले पे जो भी आता है निगार खाने का विज़िट ज़रूर करता है। निगार खाना मुल्तान में इसलिए भी मशहूर है क्योंकि यहाँ पर मुल्तान के सकाफती चीज़ें मिलती है। ब्लू पोट्री की बात की जाए तो ब्लू पोट्री से बने बर्तन, लैंप और गुलदान यहाँ पर मौजूद होते हैं। जो शहरी हैं दूर दराज से आते हैं यहाँ से आकर कैमल के बने हुए बर्तन हो या कैमल की खाल के बने हुए ऊंट की खाल के बने हुए बर्तन हो या ब्लू पोट्री के बर्तन हो ज़रूर लेके जाते हैं। शहरी मौजूद हैं कुछ जो यहाँ से बाकायदा शॉपिंग भी करके लेके जा रहे हैं। उनसे पूछ लेते हैं क्या कहना चाहेंगे। हम ज़िला राजनपुर से आए हैं और ये बर्तन भी ख़रीदे हैं। ये मशहूर हैं तो मुल्तान में आए हैं तो ये लेके जा रहे हैं हम। आप मुझे बताओ कि क्या पसंद आया है यहाँ पर और सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी है, कहाँ से आई है और कौन सी चीज़ें लेके जा रही हो यहाँ से। हम जिला राजनपुर से आए हैं। ये सब बहुत खूबसूरत है। बहुत सी चीज़ें ली हैं यहाँ से हमने। बहुत खूबसूरत है ये। बस मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सके यहाँ पे फैमिलीज़ भी मौजूद हैं शॉपिंग करने के लिए। छुट्टी के दिन जो है ज़्यादा रश लगा रहता है यहाँ पर और जैसा कि इन्होंने बताया ये भी राजनपुर से आए हैं स्पेशली और यहाँ से मुल्तान की जो बर्तन है ब्लू पोट्री के बर्तन जो दुनिया भर में मशहूर और मकबूल हैं वो लेकर जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया अलिशबा आसिफ, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी।